ਮਦਪੂਰਨ ਮਦਪੂਰਨ ਅੰਤਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਏਕਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਜ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਬਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਮੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਖੋ ਮੂਠਾ ਕਰਿ ਉਚ ਭਗਵਾਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਦੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ ਵੇਸ਼ ਮਾਰ ਅਥਾ ਗਨਤ ਤੋਲੇ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਗੋ ਜਗੋ ਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ 52 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਕਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਵੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 10 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮਨ ਮਤੀਏ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਖ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਦੇਹਿਆ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲੇ ਪਟ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਾਤਬਾ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਦਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਫੌਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਮੋ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਰਖ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਚਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਛਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਛਾਂ ਆ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਸਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਪਾਏ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ नहीं मन के प्रवान हो सकता वो सेवा कर ले। धन सेवा सेवक प्रवान अंतरजामी पुरख प्रधान, वो पुरख प्रधान पुरख हो जाऊगा तो वह डिपार्टमेंट भी समाज में उच्चा होगा, प्रधान पुरख होगा। सेवा में इन्नी समर्था है कि जां फिर कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ जिन्हें सतगुरु सिंह चित लाया, या प्रवान पुरखों के नाल जुड़ जाए, प्रवान पुरखों के हुक्म अंदर आ जाए। कितने गुरसिखां के नाम लीजिए जिहड़े प्रवान पुरखों के नाल जुड़े सन, वो प्रवान कर दिते, उन्होंने गुनाह बख्श दिते। वड्डे वड्डे जिहड़े किन्ने जन्म भटकदियां नूं हो गए, महापुरुषों की संगत विच आके वो सहजे ही प्रवान हो गए। सो अज गुरु अमरदास महाराज जिन्हां दा पवित्र जन्म दिहाड़ा संगत मनाउण आई है। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरसोवाल वाले, पहला ये जन्म दिहाड़ा इत्थे गोविंदवाल साहब मनाया नहीं सी जाता। उन्हां महापुरुषों ने इत्थे फिर मर्यादा कायम की, जन्म दिहाड़ा मनाने की मर्यादा बनी। तो भावें समय मुताबक कमेटियां ने अपनी मर्जी मुताबक इतने अगे पिछे किया, पर इस परिवार ने उस दिन को पक्का ही रखा तो उस दिन ही मनाया जान लग्या। अज उस दिन को मनाने वास्ते तुसीं उन्होंने सदे पत्र से जिथे तुसीं आए हो, उत्थे संत बाबा दर्शन सिंह जी घुटाले वाले, वो भी संतां के प्यार सदका, परिवार के प्यार सदका तुहानूं दर्शन देने वास्ते ते गुरु का जस सरवण कराउण वास्ते आए हैं। तो जो हुक्मनामे 3 दिनों तो गुरबाणी पढ़ी है, थोड़े समय वास्ते विचार करने हैं। साध संगत जी, तनासरी राग दे विच 5वें पातशाह जी महाराज का हुक्मनामा है कि ठीक है साध संगत जी विचार करनी या सुननी, बहुत कथावाचक या ज्ञानी आप जी को विचारा सुनाते होंगे। मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हाँ, मैं तो महापुरुषों का झाड़ू फेरने वाला एक सेवादार आ। उन्होंने विद्वान हो जाना होर चीज़ है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ कर देने वो कोई भी टीकाकार कर सकता है। मैं तो जिन्नी को मत बुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्होंने जितनी कोई दया की है, मैं वो अनुसार थोड़े समय बाद वास्ते तुहाडे नाल विचार करने। मैं बहुता समा नहीं लाना चाहता, मैं बाबा जी का कीर्तन सुनना सुनना है। तो मैनू बड़ी खुशी हुई बाबा जी आ गए तो सानू फिर थोड़ा घट समा लाना बनता, तो नहीं तो फिर सानू समा ज़्यादा लाना पैंदा। तो बाकी बकरी बकरी जो थाली में वक्रे वक्रे ढंग तरीके के पकवान हो तो फिर प्रसादा स्वादी बन जाता। जे कोई चीज़ स्वाद हो तो उनका आनंद नहीं बनता। तो गुरमुख प्यारे राजी सिंह तो कीर्तन तुसीं सरवण किया, तो मैं तो थोड़े समय वास्ते मैं बाबा जी को कहा सी पहला कीर्तन ला लो, मैं बाद में कर लूँगा। पर मैं हम थोड़े समय वास्ते जो हुक्मनामा सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, तनासरी राग के 5वें पातशाह जी महाराज, ये भी एक गल चेते रखियो। तनासरी महला 5वां, बहुत साड़ियाँ सिख संस्था अज खास करके शहरों के विच इस महल्ले को महला करके बोलते हैं। बहुत तुसीं पार्टी सुने होंगे। महले का अर्थ की है तो महल्ले का अर्थ की है। पर कई आम बड़े बड़े शहरों में मिलने महला बोलने वाले, इतने महला नहीं है, महल्ला है। महला स्त्री को कहते। महल्ले का अर्थ है
ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अर्थ ਕਰੋਗੇ महले का, अरबी का कोश कढ़ के देखियो, ਉਹਦੇ महले का अर्थ है पातशाह, पंजवें पातशाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फारसी में इसका अर्थ करोगे, फारसी में महले का अर्थ है स्वरूप, पंजवां स्वरूप। महला नहीं बोलना, महला बोलना। इस करके गल का चेता रखियो, जोड़ा कोई सिख महला बोलता सुनिया उन्होंने पुछियो भी अर्थ की है। तरासरी महला पंजवां, पंजवें गुरु अर्जन देव महाराज का एक वचन है, जह जब देखो तय हजूर दूर कतों ना जाए। एक सिर्फ परमेश्वर देखने वास्ते निगाह है, साथ संगति विश्वास है। जो किसी बंदे का विश्वास बच जाए ना, फिर वो परमेश्वर उत्थे हाजिर ही होंदा। जो मक्खण शाह लवाणी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में बेनती की तो उन्होंने पता नहीं सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरगद्दी ते हैं। उदों 8वें पातशाह जी गद्दी ते थे। उन्होंने फिर नाल दे एक सिख ने कहा कि तू सारे गुरु पीर देवते पूज ले, तू एक गुरु नानक की गद्दी है, उस गद्दी ते जेड़ा कोई इस वेले बैठा है उसकी मानता मन के दे देना। उस मक्खण शाह लवाणी ने फिर अरदास की कि जेड़ा भी कोई इस वेले गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते हाजिर है वो मेरा जहाज बन्ने ला दे, तो मैं 500 मोहर वो चरणों में भेंट करूँगा। किथे समुद्र है, किथे बाबा बकाला साहब की धरती है, और जहाज बन्ने लग गया। मक्खण शाह को नहीं पता लग्या भी गद्दी ते कौन है। ये कीरतपुर साहब की धरती से आया तो पता लग्या 8वें पातशाह जी भाना वरता गए। हाले गुरु का पता नहीं लग सकिया। गुरु बाबा बकाले, बाबा बसे ग्राम बकाले। सो रहो विचार जय जय देखो तय हजूर, जिन्होंने विश्वास करके परमेश्वर को देखा दूर कतों ना जाए। परमेश्वर दूर नहीं किते भी जाता, वो चेते करने में मनुख के फर्क हो सकता, सिख के याद करने में फर्क हो सकता, गुरु के हाजिर होने में फर्क नहीं है। जदों भी कोई किसी को याद करे ये तो ब्रह्म है, ये तो हाजिर है, ये ब्रह्म नहीं तो हाजिर नहीं। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरकोवाल वाले उन्होंने एक सेवक कोल होए है, दास ने उन्होंने 5 साल संगत की है। वो जंगल में बाहर उन्होंने स्थान है, मैं उन्होंने कोल 5 साल उन्होंने सेवा में रहा। वो जो उन्होंने बाहर जंगल में सन बनी तो एक किसी प्रेमी ने संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज को कहा, बाबा जी ये बीबी का जामा है, तुसी जंगल में बीबी को बहाल दिता, हुण तां तुसी हैगे शरीर करके ये बीबी को पुछी जाते हैं, सारे सेवा करते हैं। जदों तुसी शरीर करके ना होए फिर बीबी को कौन पुछूगा। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने एक सवाल का जवाब दिता है। कहने लगे, संत जी जे संत मर के भी संभाल ना करे तो फिर जीवे ही होया, फिर ब्रह्म का ना होया। जिहड़ा ब्रह्म है वह मरदा नहीं है, ते ब्रह्म हर जगह पे हाजिर है। जिहड़ा परमेश्वर का रूप हो गया वह हर जगह पे हाजिर है। ਉਹਨੂੰ जिथे तुसीं याद करोगे उत्थे हाजिर हो जाऊगा। कहते आकाश में चल जावांगे, बीबी को उतर के प्रसादा दे देवांगे, पताल में चले जावांगे, निकल के दे देवांगे। जिहड़े ब्रह्म अवस्था वाले साधु उन्होंने गल है। संत बाबा जनक सिंह जी होए आ साडे अस्थान के महान सेवादार। वो एक बार खेतों में तुरे जाते सी ते संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी का ध्यान चलिया गया। उस वेले सामने आके हाजिर हो गए। कहते जनक सिंह तैनूं पता कित्थों आए, साडा ध्यान ना धरिया कर,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਚੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੀਰ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਲਿਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਟਕਟ ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕਾੜਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਵਗੈਰਾ ਧੂਪ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਚੇ ਪਾਚੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਮਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਥ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਧੌੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧੌੜੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧੌੜੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ
सामने मौत दिस गई। उन्हें कहा राजे ने कल नूं मैनूं मार देना। जदों मौत सामने खड़ी होवे चित एकाग्र बहुत छेती हुंदा। सामने मौत दिसदी होवे, कोई धी पुत भैन भरा कोई सका कोई चंगा नहीं लगता। पुजारी ने कहा हुण मेरी मौत है, ते पुजारी आके एकाग्र चित होकर भगवान की मूर्ति के सामने सारी रात बेनतियां करता रहा, हे भगवान महाराज तुसी फलाने भगत की रखी है, द्रौपदी की लाज रखी है, भरी सभा दे विच महाराज सदामे का दरिद्र कट दिता, महाराज फलाने भगत की तुसी रक्षा की है, सैन नाई के जगह पर जाके तुसी पहरा देता। सारे रात को गिरता रहा महाराज कोई मेरी बहुती बड़ी गलती तो है नहीं, जे किते पे वो तो अपने गल तो हार ला के पे के गल च पा भी दिता, कोई बहुता बड़ा गुनाह तो है नहीं, तो हुण मैनूं राजे ने मार देना, तो मैनूं बचा लै। साध संगत जी वो पंडित की अरदास सुनी गई, अरदास सुनी गई कि वो जी मूर्ति सी पत्थर की ਉਹਦੇ ਧੌਲੇ ਹੋ ਖੜੇ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਲ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। उधरों राजे का रथ आ गया, राजे ने रथ खड़ा करके जो अंदर भगवान की मूर्ति अंदर मंदिर में बढ़िया, उन्हें सामने देखा मूर्ति के बाल है। उन्हें कहा ब्राह्मण ने बाल किते लिया के धौले मूंदना चपेट दिते। उन्हें आके भगवान को मत्था टेकिया तो राजा सीधा ही, क्योंकि विश्वास है नहीं सी उनका पत्थर की मूर्ति है, ये तौले कितने जम सकते। राजे ने सीधा जाके उसकी दाढ़ी को हथ पा लिया, दाढ़ी को हथ पा के जब ऐ खिंचण लगा राजा, उन्हें कहा माड़ा जा खिंचिया बाल उखड़ जाने, गूंदना चमेड़े है। साध संगत जी मूर्ति ने माड़ा जा मूँह कट्ठा किया, राजे ने जोर ना दाढ़ी खिंच दी, एक बाल पट हो गया, बाल पट हो गया, उसमें लहू की धार बाहर निकली पत्थर की मूर्ति के विचों, भगवान प्रगट हो गए। राजा बेहोश हो गया तो भगवान प्रगट हो गए, राजे को भी तारिया तो ब्राह्मण को भी तारिया। नामदेव जी ने उसका प्रमाण फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच दिता, कहते देवा पाहन तारी जले, राम कहत जन कस न करे, देवा नूं पत्थर की मूर्ति ने तार दिता, राम कहता बंदा नहीं तर सकता। गल विश्वास की है। अज गुरु ग्रंथ साहिब जी के विश्वास वो लोग तुहानूं करा रहे जिन्हां दा कोई ब्रह्म अवस्था नूं हले तक पुज्या ही नहीं। पहली गल तां अखंड पाठां दीआं मर्यादा भंग कर दित्तियां। जपजी साहब चक दिओ, जोत चक दिओ, कुंभ नारियल चक दिओ, इसदा कोई मतलब नहीं है। अज तुसीं पिंडां विच तकरीबन बहुत आत उन्हां लोकां दी है जिहड़े कहंदे जपजी साहब की कोई जरूरत नहीं है। जे नहीं है मर्यादा चकियां तो केवल निहंग सिंह संप्रदावां ते निर्मल पेक निर्मल संप्रदावां हाले उन्होंने ये मर्यादा रखियां ने। कारण की है साध संगत जी, कारण की है ये क्यों रखे सी? इन्हां दे रखण दा कारण की सी? अक्सर जपजी साहब नाल रखिया सी, महात्मा लोगों ने उसका मतलब की सी? अज पिंडां विच उन्हां लोकां दा बोलबाला है जिन्हां ने कोई ब्रह्म अवस्था तो बहुत दूर की गल है, जिन्होंने कोई ज्ञान है ही नहीं। अखंड पाठ होंदा की है, बाणी हिंदी की है, वो लोग लोगों को मत दे रहे हैं। जपजी साहब का मतलब
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ मैं उन्होंने वास्ते जरूर दसूँगा। ਜਿਹੜੇ संत संप्रदावां नाल जुड़े ने उन्होंने रखे ने। अज किसी ने पुछो कहते जपजी साहिब तो अगे रखिया जी, तो मतलब ही नहीं। चार चीज़ां कड़ा प्रसाद में पैंदियां ने साध संगत जी, आटा, घे, खंड ते पानी। पंजवां नूं अग ते असीं गर्म करके कड़ा प्रसाद बन जाता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ठूठी पा लवे, काजू पा लवे, वो बाद की गल है स्वाद बनाने वास्ते। उदा कड़ाह प्रसाद चार चीज़ों नाल बन जाता। जे वो चारे चीज़ां तुसीं इकट्ठियां ही पा दो अग ते, इकट्ठियां मर्यादा तो बिना ही पा दो। कड़ाह प्रसाद की मर्यादा है, वो कड़ाह प्रसाद नहीं बनूगा फिर तुम्हें सारी दिहाड़ी कड़छी फेरी जाओ और खाने वाले को भी स्वाद नहीं आऊगा, वो भी कंधा ना हाथ लपेटूगा। मर्यादा तो बिना कड़ाह प्रसाद नहीं बनया, ते मर्यादा तो बिना दाल सब्जी भी नहीं बननी। दाल सब्जी बना लो, आलू पानी च धर दो, बिचे घी पा दो, बिचे गंढे सट दो, बन जूगी। मर्यादा नाल बनूगी। एक मर्यादा रखी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ में। ਉਹਦਾ मतलब की सी जपजी साहिब का क्यों रखिया? चार चीज़ों में एक चीज़ ना पाओ तुसी कड़ाह प्रसाद दे विच, एक चीज़ फिर भी कड़ाह प्रसाद बन जूगा। तुसी खंड ना पाओ, तीन चीज़ां पा लो, आटा, घे, खंड, ना आटा, घे, पानी, तीन चीज़ां पा लो, कड़ाह प्रसाद बन जाना। जब छकूगा बंदा पता लगूगा बड़ी नहीं गल, फिर है चीज़ खंड ना पाओ, कड़ाह प्रसाद बन जाए। दाल सब्जी में एक चीज़ ना पाओ, दाल सब्जी बन जूगी। लूण ना पाओ, दाल सब्जी बन जूगी। जब बंदा खाऊगा भी एक दाल सब्जी बनी नहीं गल, लवे लूण रह गया, वो भावें बंदा बाद में पावे, वो तो बिना सब्जी बनी नहीं। जिन्नी मर्जी महंगी सब्जी लै आओ, जे लूण नहीं पाओगे दिसूगा नहीं लूण में पाया। जब चखोगे स्वाद लौंदे पता तां लगूगा भी सब्जी दाल बनी नहीं। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ की मर्यादा महात्मा लोगों ने बनी सी। जपजी साहिब का की कारण से रखने का मतलब की? इको एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़ी जपण वास्ते कही है, बाकी सारी बाणी गाउण वास्ते दात है। गुरबाणी गावो भाई, एक कल्ला जपजी साहिब की पवित्र बाणी है जी राग तो बिना है, बाकी सारिया रागां विच। जपजी साहिब राग तो बिना एक इनू महामंत्र कहते हैं, इनू जपण वास्ते कहा, इनू गाउण वास्ते नहीं कहा। जिहड़े रागी गाउंदे आ उन्होंने इस गल की समझ नहीं है। मैं कई रागी देखो जपजी साहिब के शब्द ही गाई जाते हैं, ये गाउण की हिदायत नहीं है, महामंत्र है। ਇਹਦਾ अखंड पाठ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल जपजी साहिब का जाप तां रखिया सी, महामंत्र का एक ज़्यादा फल है। ते 10,24,000 अक्षर गुरु ग्रंथ साहिब जी के ने, और जदों पाठी बाणी पढ़दा तो उसकी रचना तो कुछ अक्षर रह जाते, कई अद्धे अद्धे अक्षर रह जाते, कई पाठी की जीभ तो कई सहज स्वाद अक्षर रह जाते हैं। एक तो जपजी साहिब के विचों अखर 10,24,000 अखर पूरे करने वास्ते अखर पूरे हो गए। दूजा एक महामंत्र का नाल जाप हो गया, इसका लाभ ज्यादा हो गया। दूजा फिर जोत देसी घी अज पिंडा विचों चकातीਆਂ जोतां, हरमंदर साहिब जोत जगदी है, फतेहगढ़ साहिब चले जाओ जोत जगदी है, हजूर साहिब चले जाओ देसी घी की जोत जगती है, पटना साहिब चले जाओ ज्योति जोत देसी घी की जगती है। उसका मतलब की है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी को लैके आना होवे उस जगह की पवित्रता ही जरूरी है, उसका बाजू मंडल शुद्ध करना जरूरी है। जे बाजू मंडल शुद्ध नहीं करते, जो बड़ा बंदे को लैके आए हैं उत्थे दुर्गंधी होवे, उसे स्वच्छ बाजू मंडल करने वास्ते
कि यही जोत जगाई जाती है कि अंदर माड़े परमाणु मर जान ते चंगे परमाणु पैदा हो जान। जोत का मतलब है एक धूप का मतलब जब कोई बड़े बंदे ने आना सेंट सड़काते ये सेंट तो इन्हें रसायनिक चीज़ा पा के बना दिता, कैमिकल पा के बना दिता। असली तो सेंट या फिर चंदन है असली या फिर होर बहुत सन असली पर वो महंगे बड़े है। पर एक धूप बनाया जो द्वापर युग के कुरुक्षेत्र का जंग होया ना 18 दिन का जंग होया। 18 दिनों के 7 करोड़ बंदा रोज मरिया कुरुक्षेत्र के जंग के। 18 खूनियां खत्म हुई, एक खूनी में 7 करोड़ बंदा। बड़े बड़े जरनैल जोड़े योधे से उन्होंने चक के संस्कार कर देंगे। जोड़े बाकी लोग फिर शरीर पे रहते थे। रात को युद्ध बंद हो जाता सी, दिने युद्ध फिर शुरू हो जाता सी। जो 18 दिन वो लाशा पई रही शरीर मुश्क गए। कुदरती गल है बंदे का शरीर दूजे तीजे दिन मुश्क जाता। महात्मा लोग एकत्र हुए, युद्ध बंद होया, महात्मा लोग एकत्र हुए। उन्होंने कहा जी दुनिया मर गई वो तो मर गई, जी दुनिया बच गई है हिंदुस्तान में ये बीमारी पैन नाल ये भी सारे मर जाने। पहला चक के इन्हों का संस्कार करो। उन्होंने लोगों ने फिर 24 चीज़ा जंगल दियाँ जड़ियाँ बूटियाँ कट्ठियाँ करके छुट्टियाँ स्तूप बनाई और उस स्तूप को तैयार करके फिर महात्मा लोगों ने बड़े बड़े हवन कुंड बनाए। उस हवन कुंड के धूप समग्री पाई और सारे जितना कुरुक्षेत्र का मैदान थी वो सारे धूप धका के उसकी दुर्गंधी को दूर किया। फिर वो सारिया चक के लाशों का संस्कार करके फिर साध संगत जो मैदान या मैदाने जंग थी वह बाजू मंडल शुद्ध किया। तो वो साध संगत जी हिंदुस्तान की धरती से वो बीमारी पैन तो रोकया। एक धूप बनाई सी जोत धूप वो सिर्फ बाजू मंडल को शुद्ध करने वास्ते। जेड़े घर के कोई गंदगी है स्वच्छ हवा नहीं है आवो हवा शुद्ध नहीं उत्थे धूप जलाया। एक कुंभ नारियल बहुत कट्टरबाज लोग कहते जी लाल कपड़ा माता का है असी रखना नहीं है। वो माता को रजिस्ट्री करता लाल कपड़ा तो नारियल हिंदुओं को रजिस्ट्री करता। सिखा ने की रखना इन्हों का की कोई नहीं। गुरमुखों नारियल तो एक दरख्त को लगे वो 10 पातशाहियां ने वरत्या। जो गुरुगद्दी दी किसी गुरु साहिबा ने 5 पैसे नारियल रखा तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी में नारियल तां रखा जाता है एक गुरुगद्दी का चिन्ह है कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानते हैं। जिहड़ा नहीं मानता वो ना रखे। असी मानते हैं भी असी गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु है। इन्होंने 5 पैसे नारियल गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज रखते थे। वो नारियल मगरों तुसीं पाड़ के खा लो प्रसाद बन गया। पर उस वेले असी तां रखिया सी कि गुरुगद्दी का चिन्ह है। 5 पैसे वो नहीं लभदे चलो 5 रुपये बन लो वो चक के मुड़ के खजाने च रख लो। एक कुंभ जलद या कुंभ का अज बहुत कट्टरबाज लोग कहते जी तां रखिया सी जी अग पै जाए तो पानी बुझाने वास्ते। जिन्हों का दिमाग से उन्होंने वरत लिया। आम महात्मा लोग पानी के कंढे पर बैठ के सिमरन करते हैं। बहुते 10वें पातशाह जी के जिन्ने स्थान है नदियों के कंढे पर है। गोदावरी के कंढे पे है, गंगा के कंढे पे है, यमुना के कंढे पे है, सतलुज के कंढे पे। पानी का आवो जो कंढा है वह शुद्ध मनिया गया। उन्होंने शुद्ध पानी को तां कोल रखिया स्वच्छ एक पवित्रताई वास्ते कि पानी तां एक कोल रखिया। पवन गुरु पानी पिता पानी के विच गुरबाणी चले गई। कट्टरबाज मनुख ने तो पानी चंगा जे भी गुरबाणी ग्रहण कर ली। उन्होंने तुसीं साल भर रख छड्डो पानी खराब नहीं होता।
वो भी चक दिता, कहते ये भी हिंदूवाद है, ब्राह्मणवाद है। लाल कपड़ा देवी का है, लाल का रंग का ही पता नहीं, लाल रंग का मतलब की है? खुशी का सूहा रंग। जो सुहाग होंदा ना, खुशी का कोई ब्याह होंदा तो उस वे लाल रंग पाते हैं, लाल रंग की मौड़ी बन्नते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किसी के घर आए हैं, खुशी का समा है, तो लाल रंग बनिया गया। लाल रंग तिसको लागा जिसके बड़भागा, मैड़ा कदे न होवे ना लागे दागा। जय जय देखो तै हजूर दूर कतों ना जाई, मर्यादा बल मैं तां गया सी। अज साडी बहुत आस सिख कौम जिहड़ी है मर्यादा तो परे चली गई, मर्यादा तो परे चली गई। उसका हसर भी की होया कि ना अखंड पाठ का फल मिलिया, तो दोगे दोगे सिख कौम थले तो चलेगी, गांव नहीं गए। मारो निगाह जाके सिख कौम के अपने गुरुद्वारे खाली पे है। कारण की है? मर्यादा भंग कर दी। तुसी किसी दी शरीर नूं मर्यादा भंग कर दिओ, शरीर डाउन हो जाऊगा। खाण पीण का आगा पिछा कर दिओ, सौण का उठण का आगा पिछा कर दिओ, थोड़े पै दिओ। जब किसी धर्म की मर्यादा अगा पिछा कर दिओ, मर्यादा को भंग कर दिओ, उस धर्म भी डाउन हो जाऊगा। उस धर्म को बचाने वास्ते गुरमुख प्यारिओ मर्यादा रखनी जरूरी है। ब्राह्मणवाद जिहड़े कहण वाले, मैं उन्होंने पूछना चाहुंदा, एक गल पुछिओ उन्होंने जिहड़े कहंदे आ ब्राह्मणवाद है, असीं ब्राह्मणां दे नाल नहीं रलना, सारा ही हिंदू इतिहास पढ़िया जाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा होनी है, नहीं होनी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दसना पऊ द्रौपदी कौन है? द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन वो साज, सुदामा अपदा ते रखिया, गनका पढ़त पूरे ते काज। सुदामा दसना पऊ, द्रौपदी दसनी पऊ, दुर्योधन दसना पऊ, दुशासन दसना पऊ कौन है, उदो दसना पऊ, अकरूर दसना पऊ। ये सारिया के नाम गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं। सारा ही हिंदू इतिहास पढ़ना पड़ेगा गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा करने वास्ते, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा नहीं होगी। इस करके साध संगत जी अज बहुत आद लोग कोई दसम ग्रंथ से उंगल रखता है, कोई किते रखता है। चलो रहो विचार, मैं इस पासे ना जावा। बाबा जी का कीर्तन सुनना, मैं थोड़िया पंक्तियों का अर्थ करना। दूर कतों ना जाई, रब रहिया सर्वत्र में, मन सदा ध्याई। एक बिंदी कोलों लानी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच। दसवें पातशाह जी ने बिंदी लाई नहीं, ना गुरु अर्जन देव महाराज ने लाई। जदों दोबारा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने रखे, रसना तो बोल के सारा ही गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया, एक अदक नहीं लाया, एक बिंदी नहीं लाई। उन्होंने कहा मेरे सिख जिथे मुनासिब समझेंगे उत्थे कोलों अलाया करना। मिसाल के तौर पर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब कई गल्लां ने, सुचज्जी पढ़ो, अदक अपने आप उत्ते लग जूगा। कुलखणी पढ़ो, साख शुद्ध साख कुलखणी, इत्थे अदक अपने आप ही उत्ते लग जाना, भावें लाओ चाहे ना लाओ। नानक नारी विच कुनार, सुचज्जी कुचज्जी कुलखणी। जे नहीं अदक लाओगे तो बनूगा नहीं गल। बिंदी थानू कोलों लानी पऊगी, जे बिंदी नहीं लाओगे तो अर्थ नहीं बनूगा। मोरी मोरी रुण चुण लाया, भैणे सावण आया। इत्थे मोरी तो कहते भी अज तो मोरी है। मोरी किते भी हो सकती, मकान में होवे या किते धरती में होवे, उत्थे बिंदी लगूगी। मोरी मोरा ने रुण चुण लाया, मोरी रुण चुण लाया, भैणे सावण आया। इत्थे सतगुरु जी कहते दूर कतों ना जाई, परमेश्वर को जिथे देखूंगा नेड़े आ, पर तू ये चेता रखी, तू दूर ना जाई, चेते रखी। इत्थे एक अर्थ होर भी हो सकता, एक अर्थ होर भी हो सकता। तुसीं जिन्ने मर्जी अर्थ बना लो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ,
बहुत अर्थ बन जाते हैं, महात्मा लोग बना लेंगे ने, अगे तो अगे अपनी अवस्था मुताबिक अर्थ कढ़ते हैं। रब रहा सर्वत्र में मन सदा ध्याई, सारी सृष्टि में रविया होया। जब वो सारी सृष्टि में रविया जिथे चेते करोगे उत्थे हाजिर होगा। मन सदा ध्याई एक उतने विछड़े सो संगी गनिए, जिहड़ा इत्थे ते उत्थे नहीं विछड़दा। पंजवें पातशाह जी की पवित्र बाणी पढ़ो, साध के संग इहा उहा सहेला, साध संग विछड़त हर मेला। साधु की संगत करोगे वो भी इत्थे उत्थे नहीं विछड़ूगा, ते परमेश्वर भी इत्थे उत्थे नहीं विछड़ूगा। जिहड़ा इत्थे काम आ गया तो अगे काम ना आया परलोक में, वो संगी नहीं है। जिदा असीं छोटे छोटे पढ़ते होंगे सी, किताब में आउंदा हुंदा सी, दो मित्र तुरे जाते सी, तो तुरे जाते जंगल का रास्ता सी, ते प्रेम बड़ा सी। मोहरे दे आ गए रिछ, वो एक बंदा मुंडा शैतान सी, वो नट के दरख्त से चढ़ गया। वो दूजा चढ़न जानता नहीं सी, उन्हें सोचा हम कितना करिए। उन्हें सोचा कहते रिछ मरे उन्होंने खांदा नहीं है, वो साह घड़ीस के लम्मा पै गया। रिछ आया, रिछ ने सूंघिया सकिया, सूंघ के जा रिछ ने उन्होंने सूंघ संघ के रिछ अगे चले गए। वो उपर वाला उतरिया, उतर के उन्होंने पूछण लगा रिछ तेरे कान में की कहता सी? वो कहता रिछ मेरे कान च कहता सी जिहड़ा मित्र औखी वेले साथ छड़ जाए मित्र नहीं होंदा। ये तोत नहीं विछड़े, इत्थे भी सहाई ते अगे भी सहाई। वो हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ के देखो, थानू सारा ही पता लग जाएगा। सो संगी गनिए बिन सजाए जो निमक में, सो अलप सुख भनिए। जिहड़ा एक निमक विच बिनस जावे, खत्म हो जावे, थोड़ा जिहा सुख, की फायदा होता थोड़े जिहा सुख का। प्रतिपाले अपियाओ दे कछून ना हुई, जिहड़ा हर वेले प्रतिपालना करदा, हर वेले उहदी संभाल करदा, कछ ऊण ना हुई, कोई ऊणी गल नहीं है, पूरी गल है। साथ साथ संभालता मेरा प्रभ सोई, अछल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जन का रूप। जप जप करे आनंद जन आचार्य अनूप, सा मत देहो दयाल प्रभ। सच्चे पातशाह जी ऐसी मत बख्शो, सा मत देहो दयाल प्रभु। जिद तुम्हें अराधा इत्थे बिंदी कोलों लायो, सा मत देहो दयाल प्रभ कि तुम्हें अराधा। नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साध, साधुआं दे चरणां दी रेन मैं मंगदा। जिहड़े कट्टड़वाद लोग कहते साधा नूं किसी नूं मिलो ना, संत नूं किसी नूं मिलो ना, यह पंक्ति का अर्थ की करनगे, की इहदा अर्थ बनावांगे? नानक मंगे दान प्रभु रेन पग साध। साधु महात्मा के चरणों की रेन मिल जाए, उन्होंने चरणों की धूड़ मिल जाए, ऐसे महात्मा की धूड़ मिल जाए तो मनुख का पवसागर करना सौखा हो जाए। उन्होंने जिन्हों गुरमुखों महापुरुषों के चरणों की धूड़ मिली है। यह परिवार संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, मस्त बाबा भगत सिंह जी इस परिवार में आते रहे हैं। और साध संगत जी इन्हों पूछो उन्होंने चरणों का की आनंद से, जिन्होंने चरणों का जिन्होंने आनंद देखा ही नहीं, जिन्होंने कोई साधु मिलया ही नहीं, वो की दस सकते हैं की आनंद है। जिसने गुड़ खाधा ही नहीं उन्होंने गुड़ के स्वाद का की पता, तो जिन महात्मा के चरणों का आनंद लिया ही नहीं उन्होंने की पता महात्मा की होंगे। विसर नाही दतार अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ देखो। एक हुंदा दान, एक हुंदी चीज मुल। दान हुंदी है जिदा किसी को अमल लाना होवे ते फीम वाले डोडे वाले कोलों थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देंगे हैं, वह पैसा कोई नहीं लेंदे, थोड़ा जिहा कोलों दे देना। जब उन्होंने लग जाती वो कहता भी होर दे, वो कहते भी हम अपनी लै। दान का मुल कोई नहीं। ते एक होंदा नाम दान,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। एक होंगी मुल चीज, ਉਹਦਾ मुल है। महापुरुषों ने दान देना जिदा थोड़े जहे यूनिवर्सिटी दान दे दी है, दाने मुफ्त दे दी भी अगे तुम बीज बढ़ा दो, वो फिर कोई मेहनत करके बंदा अपना बीज बना लेंदा, वाधू बना लेंदा। महात्मा लोगों की एक ही ड्यूटी है, उन्होंने जग्यासू को स्वाद दिखा देना। जब दुकानदार थोड़ा जिहा दिंदा लै भी स्वाद देखना, जो उन्हें चंगा लगता तो पैसे लेना। तो जे मुल लेना फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते मुल लेना तो भी सिर दे बट्टे मिलो। सिर दे बट्टे साहब गुरु गोबिंद सिंह जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोड़ी आओ। ये फिर गुरु को मुल लेना फिर सिर देना पऊगा। जे दान लेना तो नाम निदान अपार भगता मन बसे, जन्म मरण लोग दुख साधु संग नसे। मोह बाद हंकार सर परुन्या, सुख न पाए मूल नाम सुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया। जिन को भय दयाल तिन साधु संग पिया। जिहदे ते परमेश्वर दयाल होया उन्होंने साधु की संगत मिली। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस है। जिसर नाही दतार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो। सो गुरमुख प्यारिओ, साहिब गुरु अमरदास महाराज जिन्हों का जन्म दिहाड़ा मामूली गल नहीं साध संगत की। एक दुनिया के इतिहास के विच नवेकली गल गुरु अमरदास महाराज ने की। एक जेडे अज लंगर दुनिया में चल रहे हैं, ये गुरु अमरदास महाराज की देन है। पहले पंगत पाछे संगत, ये गुरु अमरदास महाराज की देन है। सारे अमीर गरीब बिचे अकबर बादशाह, बिचे घाह खोटन वाले घाही उसे पंगत में बैठ के प्रसादा छक के गए। तो गुरु अमरदास महाराज ने दूजी गल एक बहुत बड़ी, हिंदुस्तान के 22 मंजियां उन्होंने बनाइया गुरु नानक साहब जी का नाम जपाने वास्ते। तो बकरियां बकरियां जगह से भेजिया, उस मंजियां पावरां दे के बहुत सारे गुरसिखां को भेजा हिंदुस्तान के। अज कुछ मंजियां चल रही ने, बहुत सारिया मंजियां आगे समाप्त हो गई ने। तो उन्होंने गुरु अमरदास महाराज का अज तुम हिंदुस्तान के कितने भी जाओ, एक गल लिखी है गोविंदवाल सिੱਖੀ ਦਾ ਤੁਰਾ। तो सब तो पहला जो अस्थान बनया ये गोविंदवाल साहब बौली साहब अस्थान बनया गुरु अमरदास महाराज का। बाकी सारे स्थान इस स्थान तो बाद में बने ने। बाकी अज तेजा ताप दुनिया में जदों किते साखी सुनाई जाती है गुरु अमरदास महाराज का नाम प्रमुख है। तो गुरु अमरदास महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, जिन्हें दयालु सन, जिहड़ा भी कोई आके माड़ा मोटा निभिया कुछ ना कुछ लैके गया गुरु अमरदास महाराज के कोल। बहुत बड़ी दया के समुद्र सन। वृद्धावस्था में सेवा करनी, 60 साल की उम्र में आके 12 साल गागर की सेवा की। सेवा करके साध संगत जी गुरसिख की तीजी पौड़ी है। एक पौड़ी है परमेश्वर को जानना, दूजी पौड़ी है वो रब महापुरुष के हुक्म के अंदर रहना, तीजी पौड़ी जरा हुक्म ना मन सके वो सेवा कर लवे, मन नीवा हो जाऊगा। तो चौथी पौड़ी है गुरु रामदास महाराज ने सुंदर मंदिर बनाए। तो जोड़ा सिख गुरु नानक के मंदिरों की सेवा करता है, गुरु नानक के स्थानों की सेवा करता है, वो भी सिख प्रवान हो जाएगा। सेवा करने वाला प्रवान है, हुक्म मनण वाला प्रवान है, नाम जपण वाला प्रवान है। जिन गुरमुख नाम ते आया आए के प्रवान, नानक कुल उदारे अपना दरगह पावे मान। या फिर नाम जपण वाले प्रवान हो गए, या गुरु अमरदास महाराज वर्गे सेवा करने वाले धन सेवा सेवक प्रवान, अंतरजामी पुरख प्रधान। या फिर प्रवान हो गए भाई महात्मा पुरखों की संगत करने वाले गुरमुख, जिन्होंने महापुरखों की संगत की। कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर सिंह चित लाया। प्रवान पुरख ही दूजे पुरख को प्रवान करा सकते हैं। जिहड़ा आप प्रवान नहीं वो दूजे को प्रवान नहीं कभी भी करा सकता।
इस करके प्रमाण पुरखों की संगत ही जरूरी है। तो जिन्होंने महापुरुषों की संगत मिली है उन्होंने गुरबाणी ने बड़े भाग लिखे हैं। बड़े भागों की निशानी यही है, जोड़ा साधु की संगत में आ गया वो बड़े भाग है। सारी गुरबाणी पढ़ लो, किते नहीं लिखा राजनीतिक बंदे की संगत करो बड़े भाग है, किते नहीं लिखा राजे का मिलाप हो जाए बड़े भाग है। ये लिखा संत का संग बड़भागी पाइए, बड़े भाग भेटे गुरुदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। बहुत बड़े भाग महात्मा की संगत मिल जाने। तो इस करके जिन्होंने महात्मा की संगत हुई, बाबा गुरदयाल सिंह जी, उन्होंने संत बाबा ज्वाला सिंह जी की संगत हुई और उन्होंने परिवार अगे तो अगे उस स्थान जिन्हें भी महात्मा उस स्थान के सेवादार हुए और उन्होंने अनुसारी होकर इन्होंने अपना जीवन चलाना किया उन्होंने महात्मा लोगों के कहे अनुसार। सो सारे परिवार में मैं सारे जिन्हें तुम आए हो गुरु अमरदास महाराज के जन्म दिहाड़े की लख लख सारे बधाई होवे। संत बाबा दर्शन सिंह जी उन्होंने दास बधाई तो वह बाबा जी तो मैनू खुशी इन्नी हुई पई जो साड़ी जी खुशी असी मना आए थे वो दुगनी चौगनी खुशी हो गई। एक तो साडा महकमा जो इकट्ठा होंदा सानू खुशी होंदी है, दूसरा जो बाबा जी कीर्तन करते हैं तो सारी संगत बड़े दूरों दूरों कीर्तन सुनने आती है। तो बाबा जी कहते थोड़ी सेहत नहीं चंगी तो उठ के आ जाओ। मैं क्या तो कभी हो नहीं सकता, दुनिया थानू दूरों दूरों सुनने आई है तो मैं बैठ के सुन लूँगा ताकि होया। शरीर औखा हस्पताल नालों तो नहीं औखा है। हस्पताल मैं कितना चर लम्मा पिया रहा वो तो बड़े सौखे हैं। जरा लत्तां अगे पिछे में कर लवेंगे कोई गल नहीं, ये समा किते लभना नहीं है। तो बाबा जी का कीर्तन सुन के तो सारी संगत तुसीं जानते मेरे दसन की जरूरत नहीं है, तो मैं तो सुन के ही जाऊँगा तो जिन्ना समा भी लग जूगा। यही जोड़ा समा है साध संगत जी, ये अगले जन्म में तुहाडी जिहड़ी लिखत है वो लिखा जाऊगा। एक चंगा जीवन सुवास चंगी जगह पर बीत जाने, महात्मा पुरुषों के वचन सरवण कर लेने, महात्मा की संगत कर लेनी, ये अगले जन्म के विच लाहा ही लाहा। जिहड़ा तुसीं लाहा कट्टण आए हो यही लाहा है। सो वो गुरबाणी थानू गुरु अमरदास महाराज जी जिहड़ा जन्मदिन है वो प्रथाए आप जी को सरवण कराउणगे। ते बाकी दास तुसीं जानते हो संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज वो मुड़ के मैंने मरे हुए वीदा करके तुहाडे दर्शन करने वास्ते लैके आए हैं। उन्होंने मर्जी है वही पठाड़ लेंगे, उन्होंने पावर देनी है, चाहे बहाड़ लैन चाहे अखाड़ लैन चाहे लै जान, उन्होंने शरीर है तो दसन की जरूरत नहीं है। तुसीं सारे जानते हो मैं अगले पासे तो ही मुड़ के आया। तो साध संगत जी उन्होंने महापुरुषों मेरी बार बार डंडौत है। इस परिवार को भी मेरी चरणों से सारिਆਂ ਦੇ मेरे सारे परिवार के चरणों से सिर रख के डंडौत है। ये गुरु अमरदास महाराज का सत्कार साडे महात्मा आते थे बाबा बहाल सिंह जी, मैं उन्होंने देखा इन्हों का सत्कार करते हैं। मैं तो नहीं उन्ना कर सकिया ना कर सकता ही। वो मैं देखा इन्होंने लम्बे पै के मत्था टेकते होंगे, एक बेदियां का एक सोढ़ियां का ते कोई बंदा आ जाए या फिर एक साडे परिवार का कोई संत बाबा ज्वाला सिंह जी के परिवार का कोई आ जाए। वो महात्मा मैं देखे कि भी निमरता वाले सी। भी एक बार बाबा सरबजोत सिंह बेदी आए, बाबा जी लम्बे पै के उन्होंने मत्था टेकिया मेरे सामने। भी मैं क्या भी असी भी इन्ने लम्बे ही नहीं पै सकते, इन्ने नीवे नहीं हो सकते जिन्ने महात्मा हो सकते हैं। सो इन्होंने परिवार को भी साड़ी नमस्कार है। बाबा जी कीर्तन कर लगे मेरी इन्होंने भी नमस्कार है। ये मेरे नाल इन्ना प्रेम करते हैं, मैं तो इन्ने जोगा है भी नहीं सी। ये कोई महाराज की रहमत होगी, इन्हों का मेरे नाल प्यार है। मेरे सदे से जिथे भी मर्जी मैं सदा आ जाते हैं। तो इन्हों भी मेरी नमस्कार है। सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।